Now this is secondary amenorrhea. Amenorrhea can be primary, that means no menarche by 15 years of age in presence of secondary sexual characteristics, breast budding is present, or no menarche by 13 years of age in absence of secondary sexual characteristics. Secondary amenorrhea is absence of menstruation for 90 consecutive days or 3 months in a female who was previously menstruating normally, or if females had previously irregular cycles, then absence of menstruation for 6 months is secondary amenorrhea. Primary amenorrhea, according to Williams, can be absence of menstruation by 15 years or absence of menstruation within 3 years of thelarchy, ठीक है, और female has not menstruated by age 14 and shows signs of hirsutism, excessive exercise or eating disorder. Secondary amenorrhea is absence of menstruation for 3 months in a previously menstruating female, not less than 9 cycles per year, also needs to be investigated. Normally there should be 12 cycles in a year. Categories of amenorrhea based on gonadotropin and estrogen. Types of hypogonadism leading to like hypergonadotropic hypogonadism, then LHFSH will be high and estrogen will be low, and the primary defect will be in the ovary. तो ओवरी से ईस्ट्रोजन की कमी होने के कारण नेगेटिव फीडबैक के लॉस होने के कारण LHFSH बढ़ता है हाइपरगोनाडोट्रोपिक, और हाइपोगोनाडोट्रोपिक में क्या होता है LHFSH में डिफेक्ट रहता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में डिफेक्ट होने के कारण LHFSH इज लो, जिसके कारण ईस्ट्रोजन कम बनता है ओवरी से. और देयर कैन बी यूगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, यानी कि LHFSH नॉर्मल है, ना हाई ना कम, ईस्ट्रोजन है वो कम होते हैं लेकिन, ठीक है. द डिफेक्ट कैन बी वेरिड. सो हाइपोथैलेमस रिलीजेस GnRH इन अ पल्सेटाइल मैनर. पल्सेटाइल मैनर में रिलीज करता है GnRH, जो कि एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, रिलीजेस LH एंड FSH, एक्ट्स ऑन द ओवरी टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ईस्ट्रोजन हैज़ अ नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH एंड GnRH, ठीक है. ईस्ट्रोजन जो है वो FSH पे नेगेटिव फीडबैक करता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो LH पे नेगेटिव फीडबैक करता है. Estrogen has a negative feedback on FSH and GnRH. If defect in ovary is there and estrogen levels are decreased, then negative feedback on the FSH will be lost and it will lead to increase in FSH, that is hypergonadotropic hypogonadism. If defect is in hypothalamus or pituitary, then levels of GnRH will be low, that is FSH will be low and estrogen will be low. This is called as hypogonadotropic hypogonadism. FSH levels are usually checked. नॉर्मली हम दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए LH के लेवल्स चेक नहीं करते, FSH के लेवल्स चेक करते हैं. सेकेंडरी एमेनोरिया, मोस्ट कॉमन कॉज इज प्रेगनेंसी. ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स इन प्रेगनेंसी देयर इज एमेनोरिया, एंड अदर फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया अदर देन प्रेगनेंसी आर lactation, because during lactation there is increased prolactin. What does prolactin do? It leads to a negative feedback on GnRH, decreased levels of LH and FSH, which lead to decreased levels of estrogen and secondary amenorrhea. Applied aspect is, if there is hyperprolactinemia due to any cause like prolactinoma, then it can cause secondary amenorrhea, hypogonadotropic amenorrhea. If hypogonadotropic amenorrhea is there, prolactin levels are not always increased. ज़रूरी नहीं है कि hypogonadotropic amenorrhea है तो prolactins will always be increased. जैसे कि शीहैन सिंड्रोम में LH FSH तो कम है, प्रोलैक्टिन भी कम है. फिजियोलॉजी, नॉर्मली हाइपोथैलेमस रिलीजेस पेप्टाइड्स लाइक, नॉर्मली हाइपोथैलेमस GnRH, TRH, CRH रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और पिट्यूटरी उनके कारण फिर LH, FSH और TSH और ACTH रिलीज करती है. प्रोलैक्टिन के केस में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस फ्रॉम इट्स आर्क्यूएटेड न्यूक्लियस रिलीजेस डोपामिन. डोपामिन फिर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है. डोपामिन एगोनिस्ट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, क्योंकि डोपामिन एगोनिस्ट विल इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन. प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स, तो डोपामिन तो प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, लेकिन प्रोलैक्टिन के रिलीज को स्टिमुलेट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं? एक तो TRH जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा है. नॉट ओनली डज इट इंक्रीज और स्टिमुलेट द
TSH release, but it also increases or stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary. Vasopressin भी जो है वो प्रोलैक्टिन के लेवल्स को प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाता है. वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स ऑल्सो एंड एसिटाइलकोलिन. TRH, vasopressin, VIP and acetylcholine, they all are prolactin releasing factors. So dopamine receptors होते हैं दो तरह के, D1 and D2. Cells on the anterior pituitary gland primarily have D2 receptors. Therefore, drugs with better role in testing for hyperprolactinemia should be D2 specific more than non-specific dopamine agonist. D2 receptor specific drugs are cabergoline more than bromocriptine, because bromocriptine is a non-specific dopamine agonist. Cabergoline has a longer half-life and it can be given weekly or twice weekly, and it has lesser side effects than bromocriptine. Bromocriptine has to be given daily and it has more side effects like nausea and vomiting. TRH जो है वो prolactin releasing factor है. It releases TSH and prolactin from pituitary. Vasopressin, vasoactive intestinal peptides or acetylcholine also are prolactin releasing factors. Applied aspect is Hashimoto's thyroiditis. There is decreased circulating thyroid levels, hypothyroidism, जिसके कारण कंपनसेटरी इंक्रीज होता है TRH में, और TRH फिर इंक्रीज करता है TSH और प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन. दिस एक्सप्लेन्स द लिंक बिटवीन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया. ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे कि हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस में देखने को मिलता है, दैट इज एसोसिएटेड विद सेकेंडरी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के लॉस के कारण TRH लेवल्स बढ़ते हैं जो कि TSH और प्रोलैक्टिन दोनों को बढ़ाता है. Therefore, in all patients with increased prolactin, TSH must be measured, क्योंकि TSH भी बढ़ा हुआ होगा अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है काफ़ी केसेस में. If TSH and prolactin levels both are increased, then treat TSH first. पहले TSH को ठीक करेंगे. हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के कॉजेज ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़. प्रोलैक्टिन बढ़ता है बॉडी में, जैसे कि प्रेगनेंसी में 10 गुना बढ़ जाता है प्रोलैक्टिन. स्लीप के बाद प्रोलैक्टिन इज इंक्रीज्ड. खाने के बाद प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है. कोइटस के बाद प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, इसलिए इवन मास्टरबेशन के बाद भी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है. दैट्स वाई मास्टरबेशन, रेगुलर मास्टरबेशन और कंपल्सिव मास्टरबेशन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट जस्ट मेंटल बट ऑल्सो फिजिकल हेल्थ. फॉलोइंग चेस्ट वॉल स्टिमुलेशन. चेस्ट वॉल स्टिमुलेट करने से, जैसे कि सकलिंग के कारण या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में या फिर चेस्ट वॉल सर्जरी में, प्रोलैक्टिन कैन इंक्रीज. हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी चेस्ट वॉल के ऊपर इन्फेक्शन अगर है तो दैट कैन इंक्रीज प्रोलैक्टिन रिलीज. क्रेनियल लीजन्स कुछ हो सकते हैं, जैसे प्रोलैक्टिनोमा, या फिर तो क्रेनियल लीजन्स प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है, या फिर लीजन्स जैसे कि क्रेनियल ट्यूमर्स हैं, रेडिएशन है, रेडिएशन एक्सपोजर, सार्कोइडोसिस इन ब्रेन, TB in brain, that can also lead to increased prolactin release, and hypothyroidism also, prolactinoma. Measure prolactin in morning में मेजर करते हैं. prolactin has a negative feedback on GnRH and it decreases LH and FSH. ठीक है, एमेनोरिया क्यों करवाता है? क्योंकि प्रोलैक्टिन हैज़ ए नेगेटिव फीडबैक ऑन GnRH, LH FSH कम हो जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन कम हो जाता है. नॉर्मल लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन इन बॉडी इज लेस देन 20 नैनोग्राम टू 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर. ये नॉर्मल लेवल्स हैं. अगर प्रोलैक्टिन इज माइल्डली एलिवेटेड, देन वी रिपीट अ सेकेंड सैम्पल एंड कन्फर्म द इंक्रीज्ड लेवल्स. देन वी डू एन MRI टू डिटेक्ट एंड मेजर द साइज ऑफ प्रोलैक्टिनोमा. अगर प्रोलैक्टिनोमा यानी एडिनोमा का साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो माइक्रो एडिनोमा बोलते हैं, और मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो मैक्रो एडिनोमा बोलते हैं. मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ प्रोलैक्टिनोमा इज एमेनोरिया मोर देन इनफर्टिलिटी. ये दोनों ही कॉज करवाता है प्रोलैक्टिनोमा ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ऑन GnRH. अदर सिम्टम्स ऑफ प्रोलैक्टिनोमा विल बी गैलेक्टोरिया, डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है, क्योंकि ईस्ट्रोजन इज लेस, एनोवुलेशन ड्यू टू ईस्ट्रोजन इज लेस, एंड ओलिगोमेनोरिया बिकॉज ईस्ट्रोजन इज लेस. मैक्रो एडिनोमा कैन इन्वेड द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. ऑप्टिक कियाज्मा को इन्वेड कर सकता है टू कॉज बाइटेम्पोरल हेमियानोप्सिया, एंड कैवर्नस साइनस को इन्वेड करके CV सिंड्रोम करवा सकता है, जिसमें कि हेडेक, विजुअल सिम्टम्स और क्रेनियल नर्व पाल्सी लाइक 3rd, 4th, 6th नर्व पाल्सी कैन हैपन. Prolactinoma is a prolactin secreting pituitary adenoma, may release other hormones of pituitary as well. So prolactinoma ना सिर्फ प्रोलैक्टिन रिलीज करता है और पिट्यूटरी वाले हॉर्मोन्स भी रिलीज कर सकता है.
Symptoms due to excessive hormones, hyperprolactinemia, acromegaly can happen due to increase in growth hormone, and Cushing disease can happen due to increase in ACTH. There can be spontaneous hemorrhage into the adenoma leading to pituitary apoplexy. पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी होती है हेमरेज इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो एडिनोमा के कारण स्पॉन्टेनियस हेमरेज भी हो सकती है। मैनेज कैसे करेंगे? अगर एसिम्प्टोमेटिक माइक्रो एडिनोमा है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। सीरियल 1 से 2 साल में सीरियल हम MRI करवाएंगे, प्रोलैक्टिन लेवल्स करवाएंगे हर 1-2 साल में। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू रिपोर्ट इवन माइल्ड चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल as it is a risk for hypoestrogenism. Chances of progression to macroadenoma are less than 10%. तो मैनेज कब करेंगे प्रोलैक्टिनोमा को? अगर एसिम्प्टोमेटिक मैक्रो एडिनोमा है, माइक्रो एडिनोमा था तो कंजर्वेटिवली मैनेज किया था, मैक्रो है अगर तो बिकॉज इट में लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, सो वी हैव टू ट्रीट इट। सिम्प्टोमेटिक प्रोलैक्टिनोमा है, चाहे फिर वो माइक्रो एडिनोमा है वो मैक्रो, सिम्प्टोमेटिक है तो हम ट्रीट करेंगे। अगर इनफर्टिलिटी है प्रोलैक्टिन बढ़ने के कारण, जैसे नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस है, ठीक है, तो उसमें फिर ट्रीट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइसेस कैबरगोलिन मोर देन ब्रोमोक्रप्टन, और 1 महीने के बाद हम प्रोलैक्टिन लेवल्स को चेक करते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंज में है तो फिर हम इसी डोज को कंटिन्यू करते हैं, और अगर बढ़े हुए हैं लेवल्स या कम नहीं हो रहे तो फिर हम डोज को टाइटरेट कर देंगे। प्रोलैक्टिन के लेवल्स को हर महीने मॉनिटर करेंगे। अगर प्रोलैक्टिन 50 से ज़्यादा पहुँच गया है, जो कि नॉर्मली 20 से 25 था, तो फिर हम सर्जरी करनी पड़ेगी। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद हम फिर मेडिकल मैनेजमेंट के 4 महीने बाद MRI करेंगे, ठीक है। अगर ट्यूमर श्रिंक कर रही है तो हम सेम ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन अगर ट्यूमर का साइज़ बढ़ रहा है या कम नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। देन वी हैव मेनोपॉज, रीज़न फॉर एमेनोरिया, मेनोपॉज। इंडिया में 47 ईयर्स के बाद आता है मेनोपॉज, वर्ल्ड वाइड 51 ईयर्स। अप्लाइड इफ ओवेरियन फेलियर अकर्स एट लेस देन 40 ईयर्स देन इट लीड्स टू प्री मैच्योर मेनोपॉज और प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी लीडिंग टू सेकेंडरी एमेनोरिया। 40 से पहले ही आ गया तो प्री मैच्योर मेनोपॉज है या फिर प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी लीड्स टू सेकेंडरी एमेनोरिया जनरली, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू प्राइमरी एमेनोरिया। अगर 14-15 साल की उम्र से ही मेंसेस आए ही नहीं ड्यू टू इनसफिशिएंसी इन द ओवरीज, देन इट इज़ प्राइमरी एमेनोरिया। अगर बाद में हो रहा है तो सेकेंडरी। ऐसे फॉलिकल्स दिखते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में। एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, स्ट्रीक गोनैड्स होंगे, मेंस्ट्रुएशन होगी ही नहीं, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। प्री मैच्योर मेनोपॉज और प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी मीन्स ओवेरियन फेलियर अकर्स बिफोर 40 ईयर्स, जो कि 47 ईयर्स के बाद होना चाहिए था। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? रेडिएशन एक्सपोजर हो गया ओवरीज में, ओवरीज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन द पेल्विस टू द रेडिएशन, या फिर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स देने के कारण इनसफिशिएंसी। क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं कुछ, जैसे टर्नर सिंड्रोम जिसके कारण एक्सेलरेटेड एटरीशिया होता है ओवरीज का, या फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, CYP17 म्यूटेशन है जिसके कारण कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया हो जाता है। पेरोल्ट सिंड्रोम है, तो 4 सिंड्रोम है, टर्नर, फ्रेजाइल एक्स, CYP17 म्यूटेशन एंड पेरोल्ट सिंड्रोम। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वायरल डिजीज जैसे मम्प्स कैन ऑल्सो लीड टू प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोज के लेवल्स इन द ब्लड कैन ऑल्सो लीड टू प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मम्प्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। नोट, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है? ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस होता है, CGG, ये ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस रहती है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑटिज्म इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। मेंटल रिटार्डेशन और ऑटिज्म का मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कॉज। फीमेल्स में प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय इट, ठीक। और वैसे ही मेंटल रिटार्डेशन और ऑटिज्म तो करता ही है। CGG की ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस होती है। CYP17 म्यूटेशन कैन ऑल्सो बी देयर, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया ड्यू टू 17D हाइड्रोक्सिलेज और 1720 लाइज डेफिशिएंसी which leads to decreased cortisol and decreased androgens which leads to decreased estrogen, sexual infantilism, absent of the breast development, scanty axillary and pubic hair, and small or infantile uterus due to estrogen and androgens deficiency. Male ambiguous genitalia can be seen. Decreased cortisol, कोर्टिसोल के कम होने के कारण ACTH के लेवल्स बढ़ते हैं, नेगेटिव फीडबैक लॉस के कारण, जिसके कारण फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल्स बढ़ते हैं क्योंकि उसके ऊपर
इन एंजाइम्स का कोई कंट्रोल नहीं होता एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन के ऊपर, जिसके कारण फिर बीपी और हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है। हाइपर बीपी, इंक्रीज बीपी एंड हाइपोकैलेमिया। सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म, परवल सिंड्रोम में देर इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। अलोंग विद ओवेरियन डिसफंक्शन देखने को मिलता है। रेंजेस फ्रॉम ओवेरियन डिसजेनेसिस कैन बी देयर, प्राइमरी एमेनोरिया कैन बी देयर, प्राइमरी ओवेरियन insufficiency can be there, or a neurological dysfunction will also be present. Ranges from learning ability to cerebellar ataxia. So तीन चीज़ें, sensory neural hearing loss, ovarian dysfunction and neurological dysfunction like learning disability to cerebellar ataxia, Perrault syndrome. Confirmatory test क्या होगा प्राइमरी ओवेरियन insufficiency का? We have to measure FSH levels on two separate occasions. The primary ovarian insufficiency है तो due to loss of negative feedback there will be increased levels of FSH. So levels are more than 40 international units, primary ovarian insufficiency. Other investigations, karyotyping, especially if the patient is less than 30 years, तो karyotyping करते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी करते हैं। karyotyping क्यों करी? टर्नर सिंड्रोम वगैरह का पता लगाने के लिए, म्यूटेशंस पता लगाने के लिए। बोन मिनरल डेंसिटी कैन ऑल्सो बी चेक्ड। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि ओवरी से आ नहीं रहे तो हम आर्टिफिशियली दे देंगे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टिल नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज। इनफर्टिलिटी के लिए डोनर एग और आईवीएफ का यूज़ करेंगे। कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया आर एंडोक्राइनल कॉजेज लाइक हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में डिफेक्ट है। एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण, ईटिंग डिसऑर्डर्स के कारण, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस लाइक ट्यूमर्स, ट्रॉमा, रेडिएशन एंड इन्फेक्शन इन द हाइपोथैलेमस। ट्यूमर, ट्रॉमा, रेडिएशन और इन्फेक्शन। पिट्यूटरी में जैसे प्रोलैक्टिनोमा हो गया है, शीहान सिंड्रोम हो गया है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हो गए हैं जैसे ट्यूमर्स, ट्रॉमा, रेडिएशन और इन्फेक्शन। Endocrinal causes can be there, hypergonadotropic hypogonadism due to primary ovarian insufficiency. The diagnosis will be two readings of FSH more than 40 international units 1 month apart. और suggestive होगा primary ovarian insufficiency if two readings of FSH are more than 25 international units 1 month apart. Anatomical cause भी हो सकता है, जैसे यूट्रस में डिस्ट्रक्शन एशरमैन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ईस्ट्रोजन, LH एंड FSH विल बी नॉर्मल क्योंकि ओवरीज आर नॉर्मल, बट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वही सही नहीं है, तो एमेनोरिया हो रहा है। FSH नॉर्मल इज लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। इन हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म लेवल्स आर लो और नॉर्मल, दैट इज 1 to 2 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे इन हाइपोगोनेडोट्रोपिक। इन पेशेंट्स विद एमेनोरिया FSH कैन बी डन ऑन एनी डे, ठीक है। वैसे मेंस्ट्रुएशन में हम मेजर करते हैं अगर FSH तो डे 2 to 3 ऑफ मेंसेस में चेक करते हैं, लेकिन एमेनोरिया का पेशेंट है उसमें मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं रही, तो उसमें हम किसी भी दिन FSH चेक कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ यूगोनेडोट्रोपिक, तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक देख लिया, हाइपरगोनेडोट्रोपिक देख लिया। यूगोनेडोट्रोपिक एमेनोरिया के कॉजेज PCOS जिसमें FSH नॉर्मल रहता है, नॉन क्लासिकल कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया नॉन क्लासिकल, और थायराइड डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो PCOS, नॉन क्लासिकल CAH और थायराइड डिसऑर्डर्स, इसमें यूगोनेडोट्रोपिक एमेनोरिया देखने को मिलता है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कॉजेज सेकेंडरी एमेनोरिया। Investigations done in case of secondary amenorrhea in cases of females with normal pelvic anatomy. तो anatomy normal है, तो first step will be urine pregnancy test. Second step will be hormonal investigations like TSH levels will be checked. Hyperthyroidism and hypothyroidism both can cause amenorrhea in females, so TSH levels are very important. Serum prolactin levels are important. Follicle stimulating hormones are important. Clinical assessment of estrogen levels has to be done. Vaginal ultrasound helps in differentiating primary ovarian insufficiency जिसमें कोई follicles नहीं होंगे, और PCOS जिसमें 20 से ज़्यादा follicles होंगे, उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, vaginal अल्ट्रासाउंड, एमेनोरिया के कोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन insufficiency, ovarian insufficiency and PCOS. Number of follicles will be different in both of them. MRI करेंगे प्रोलैक्टिनोमा के लिए, ठीक, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिफेक्ट करने के लिए, सस्पेक्ट अगर है तो, मतलब सस्पेक्टेड है तो। Excessive exercise can lead to excessive weight loss and that can also lead to amenorrhea. फीमेल एथलीट ट्रायड में देखने को मिलता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन रहता है,
लो एनर्जी होती है और लो बोन मिनरल डेंसिटी देखने को मिलती है। एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण देर आर रिलीज ऑफ एंडोजेनस ओपिएट बीटा एंडोर्फिन्स विच ऑल्टर द पल्सैलिटी ऑफ द जीएनआरएच लीडिंग टू सेकेंडरी एमेनोरिया। एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण एंडोजेनस ओपिएट बीटा एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि जीएनआरएच के पल्सेटाइल रिलीज को अल्टर करते हैं। शीहान सिंड्रोम क्या होता है? नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस बहुत हो गया, पोस्टमार्टम हेमरेज होगी, जिसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस हो गया। ड्यू टू सीवियर पोस्टमार्टम हेमरेज एब्रप्ट सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है बॉडी में, जिसके कारण नेक्रोसिस हो जाता है। शीहान सिंड्रोम, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी इन सीवियर केसेस। शीहान सिंड्रोम में क्योंकि पिट्यूटरी में डिफेक्ट है तो एलएच एफएसएच कम होंगे, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाता है। इवन एसीडीएच लेवल्स आर डिक्रीज्ड, प्रोलैक्टिन लेवल्स आर डिक्रीज्ड एंड टीएसएच लेवल्स आर डिक्रीज्ड, ठीक है। तो ये हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म है, लेकिन इसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स भी कम हो रहे हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ नहीं रहे। तो हर हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म में ज़रूरी नहीं कि प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़े हुए हों। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है, शीहान सिंड्रोम में एफएसएच कम है, ईस्ट्रोजन कम होगा, सेकेंडरी एमेनोरिया, फेलियर टू लैक्टेट क्योंकि प्रोलैक्टिन भी कम है, लॉस ऑफ सेक्सुअल एंड एक्सिलरी हेयर, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, सडन ऑनसेट हेडेक हो सकता है, नोजिया, विजुअल डिफेक्ट और हार्मोनल डिसफंक्शन। फीमेल विद कंप्लेंट ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया विद फेलियर टू लैक्टेट, ठीक है, अगर सेकेंडरी एमेनोरिया और लैक्टेशन नहीं कर पा रही तो शीहान सिंड्रोम होगा क्योंकि प्रोलैक्टिन इज डिक्रीज्ड। लेकिन अगर फीमेल कंप्लेंट कर रही है गैलेक्टोरिया के साथ एमेनोरिया तो वो प्रोलैक्टिनोमा इज द कॉज। एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है? एशरमैन सिंड्रोम इज प्रेजेंस ऑफ इंट्रा यूट्रस के अंदर एडिशंस और साइनी के फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, डिस्ट्रक्शन हो जाती है अप टू बेसल लेयर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम अप टू द बेसल लेयर एंड इट इज़ अनेबल टू रीग्रो नहीं कर पाती। नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस की एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स अपोज्ड रहती हैं, ठीक, उसके कारण फिर साइनिके बन जाते हैं अगर देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। कोजेज क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रक्शन के एंडोमेट्रियम जिसके कारण एडिशंस और साइनिके बन रहे हैं। ड्यू टू एक्सेसिव यूट्राइन क्यूरेटाज, हाईएस्ट रिस्क इज क्यूरेटाज इन पोस्टमार्टम पीरियड, मल्टीपल डीएनसी कर दी, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। जेनिटल टीबी है या शिस्टोसोमियासिस है, यूट्राइन सर्जरी कर दी जैसे मेट्रोप्लास्टी फॉर एंडोमेट्रियम, मायोमेक्टमी फॉर फाइब्रॉइड, सी सेक्शन कर दिया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विल बी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी विच इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ग्रुप एंड इनफर्टिलिटी विच इज़ द मोस्ट कॉमन सिंगल सिम्टम। तो एशरमैन सिंड्रोम में ड्यू टू डिफेक्ट इन द यूट्रस देर इज इनफर्टिलिटी विच इज़ द मोस्ट कॉमन सिंगल सिम्टम एंड ऑल्सो ड्यू टू डिफेक्ट इन एंडोमेट्रियम देर इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ठीक है, द सेकेंडरी एमेनोरिया एंड हाइपोमेनोरिया। डिसमेनोरिया इज ऑल्सो देयर, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, रिकरिंग प्रेगनेंसी लॉस। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं अल्ट्रासाउंड, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी और हिस्टोसाल्पिंगोग्राम भी करते हैं और हिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं विच इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हिस्टोसाल्पिंगोग्राम होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज हिस्ट्रोस्कोपी और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करते हैं तो थिन एंडोमेट्रियम दिखती है, थिन एंडोमेट्रियम, डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम और हेट्रोजेनस एंडोमेट्रियम दिखती है अल्ट्रासाउंड पे। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी इज बेटर देन अल्ट्रासाउंड। स्क्रीनिंग टेस्ट इज हिस्टोसाल्पिंगोग्राम जिसमें कि स्मॉल इरेगुलर मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट्स दिखते हैं, फिलिंग डिफेक्ट्स मल्टीपल इरेगुलर स्मॉल, ठीक है। मोथ हिटन अपीयरेंस जिसको बोलते हैं, मोथ हिटन अपीयरेंस। अगर वेल डिफाइंड रेगुलर फिलिंग डिफेक्ट्स हों, ठीक है, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफ में तो फाइब्रॉइड इज द रीज़न अगर रेगुलर डिफेक्ट्स हैं, अगर इरेगुलर है तो एशरमैन सिंड्रोम। डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी पे देखते हैं, इट इज़ इन्वेजिव टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है। लैंडमार्क पोर्ट्स फॉर हिस्ट्रोस्कोपी, तो 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेफ्ट ओस्टिया, राइट ओस्टिया एंड इंटरनल ओस। नॉर्मली एक परफेक्ट ट्रायंगल दिखना चाहिए, लेकिन अगर ये कनकैविटी प्रेजेंट हो तो फिर एशरमैन सिंड्रोम है। ड्यू टू एडिशंस देयर इज डिपिंग ऑफ द फंडस, फंडस डिप कर जाती है और लेटरल वॉल्स जो हैं वो ड्रॉ इन हो जाती हैं एशरमैन सिंड्रोम में। मैनेज कैसे करते हैं? हिस्ट्रोस्कोपिक एडिसियोलाइसिस फॉर एशरमैन सिंड्रोम, द स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड स्पेस ड्यू टू दिस एडिसियोलाइसिस बिकम्स अ बिगर कैविटी वेयर द फीटस कैन ग्रो नाउ, तो इनफर्टिलिटी इज रिजॉल्व्ड। फॉलोड बाय प्रिवेंशन। अब एडिशियोलाइसिस तो कर दिया लेकिन आगे एडिशंस ना बने उसके प्रिवेंशन के लिए हम कैथेटर्स यूज़ करते हैं।
इंडिया में हम पीडियाट्रिक फोलीज कैथेटर नंबर 8 और 10 यूज़ करते हैं, यूट्राइन कैविटी के अंदर प्लेस कर देते हैं पीडियाट्रिक फोलीज कैथेटर नंबर 8 और 10. Cook's intrauterine balloon catheter can also be used, but it is not available in India. Similarly, hyaluronate gel is also not available in India, which can be used. Hyaluronate gel, Cook's intrauterine balloon catheter. And then prevention has also been done. और अब हम देंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ताकि जो एंडोमेट्रियम थिन हो गई थी, डिफेक्टिव हो गई थी, वो वापस बिल्डअप कर सके. 3 महीने के लिए हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देंगे. Algorithm for diagnosis of secondary amenorrhea in all females complaining of secondary amenorrhea or infertility and all males complaining of infertility, always do TSH and prolactin, क्योंकि हाइपर हाइपो दोनों थायरॉयडिज्म कैन लीड टू एमेनोरिया एंड इनफर्टिलिटी एंड प्रोलैक्टिन लेवल्स. सेकेंडरी एमेनोरिया में हम इन्वेस्टिगेशन एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, फिर TSH प्रोलैक्टिन करेंगे, FSH भी करेंगे, ठीक है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरगोनाडोट्रोपिक एंड हाइपोगोनाडोट्रोपिक, और ईस्ट्रोजन लेवल्स करेंगे टू डिफरेंशिएट. FSH और ईस्ट्रोजन लेवल्स करें, ठीक है. अगर FSH बढ़ा हुआ है 25 इंटरनेशनल यूनिट्स और ईस्ट्रोजन कम है, तो मतलब हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है. इट सजेस्ट प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ठीक है. मेजर FSH ऑन 2 ओकेजन्स 1 मंथ अपार्ट. अगर FSH के लेवल 40 से ज़्यादा हैं तो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी कन्फर्म हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है. लेकिन अगर FSH कम है तो फिर प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट करते हैं, बिकॉज इट कैन बी हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म. प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट करते हैं, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट देते हैं 10 मिलीग्राम BD 5 दिन के लिए, और फिर स्टॉप कर देते हैं एकदम से, ठीक है. स्टॉप करने पर अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग हुई तो फिर PCT पॉजिटिव है, कॉज इसका एनोवुलेशन है, PCOS में भी द रीज़न, लेट ऑनसेट congenital adrenal hyperplasia can be the reason, जिसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स आर डिक्रीज्ड, ठीक है. तो प्रोजेस्टेरोन की प्रॉब्लम थी, प्रोजेस्टेरोन देने पे विथड्रॉ होने पे ब्लीडिंग हो गई, लेकिन अगर तब भी ब्लीडिंग नहीं हो रही तो PCT इज़ नेगेटिव, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट इज़ नेगेटिव, ठीक है. ईस्ट्रोजन अगर फिर नॉर्मल है, ईस्ट्रोजन अगर नॉर्मल है तो प्रॉब्लम एंडोमेट्रियम में है. क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन दिया, विथड्रॉ किया, विथड्रॉल के कारण जाके फिर हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक, GnRH पे नेगेटिव फीडबैक, LH पे नेगेटिव फीडबैक, ठीक है. वो लॉस हो गई क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है नहीं अब, तो उसके कारण फिर ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने चाहिए थे, लेकिन अगर वो बढ़े भी, नॉर्मल रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई तो फिर ईस्ट्रोजन जो था वो एक्ट ही नहीं कर पाया एंडोमेट्रियम पे, मतलब एंडोमेट्रियम में ही कुछ प्रॉब्लम है. लेकिन अगर ईस्ट्रोजन लेवल्स आर डिक्रीज्ड, ठीक है, तो मतलब ईस्ट्रोजन आया ही नहीं प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल होने के बाद भी, मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ने सिग्नल भेजा ही नहीं, ठीक है. लेकिन अगर या फिर हम कर सकते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट. उसमें क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देते हैं, ठीक है. अगर फिर विथड्रॉल ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है. फिर MRI ब्रेन करते हैं, और अगर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन दिख रहा है तो प्रोलैक्टिनोमा है. अगर एम्प्टी सेल टर्सिका दिख रही है तो शीहन सिंड्रोम है, यानी एपोप्लेक्सी हो गई है. अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग एब्सेंट है तो मतलब EP चैलेंज टेस्ट नेगेटिव है. एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है कि अगर हमने नॉर्मली हार्मोन्स दिए फिर भी जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, तो मतलब एशरमैन सिंड्रोम है, एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम है. अगर सब कुछ ही नॉर्मल है तो मतलब हाइपोथैलेमिक ही एमेनोरिया है. सो प्राइमरी एमेनोरिया के रीजंस, सेकेंडरी एमेनोरिया के रीजंस, और दोनों करवा सकते हैं. कुछ ऐसे रीजंस भी हैं, जैसे प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी अगर 14-15 साल की एज में हो तो प्राइमरी एमेनोरिया, लेटर हो तो सेकेंडरी एमेनोरिया. प्रेगनेंसी कैन हैपन विच लीड्स टू एमेनोरिया. PCOS can lead to amenorrhea. Increased prolactin, thyroid disease, Cushing syndrome, empty cell syndrome. These all can lead to amenorrhea of both types. Mullerian agenesis, androgen insensitivity syndrome, gonadal dysgenesis, physiological delay, Coleman syndrome, transvaginal septum or imperforate hymen can lead to primary amenorrhea. Sheehan syndrome, Asherman syndrome, cervical sclerosis, infections and pituitary lesions can lead to secondary amenorrhea. Primary ovarian insufficiency may be do tests like fMRI permutation. Karyotype is done in all females, especially if the young female is there, और CAH के लिए टेस्ट करते हैं. प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में देयर इज डिक्रीज्ड AMH एंड इंक्रीज्ड FSH, ठीक है. तो
तो AMH कम रहता है, ओवेरी में इनसफिशिएंसी है तो थीका सेल से AMH वगैरह नहीं आता, और FSH बढ़ा हुआ होता है ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। PCOS में देर इज इंक्रीज्ड एंटी मिलेरियन हार्मोन एंड नॉर्मल FSH। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया इज गोनेडल डिसफंक्शन, टर्नर्स फायर सिंड्रोम, और इंडिया में मिलेरियन मालफॉर्मेशन। सेकंड मोस्ट कॉमन मिलेरियन एजेनेसिस ओवरऑल, और इंडिया में गोनेडल डिसफंक्शन। Genital TB can also lead to primary amenorrhea in India, and that is all about secondary amenorrhea.